Today topic is method of separation of variable. This one is most important topic. The method of separation of variable is used to find an analytic solution of a linear PDE in the form of series solution for Cauchy problem. When you have a boundary value problem, then we prefer method of separation variable, but condition is that boundary condition should be homogeneous. Then we can use method of separation of variable. A problem satisfy both initial condition, usually with T0 and space boundary condition, then method of separation variable preferable. What is the main advantage of method of separation of variable? Method of separation of variable, the dependent variable where you indicate dependent x and y or maybe other variable is expressed in the separable form, look like this. If you have equation involving two variables, then we separate in terms of two variables. If we have equation involving three variables, then we separable with respect to three variables, where x, capital X and capital Y are functions of x and y respectively. Partial main advantage of method of separation variable is that this one reduces the partial differential equations into two ordinary differential equations. We have already studied that, क्योंकि हम ये पहले ही आपको प्रीवियस क्लासेस जो ली हैं उसमें मैंने क्लियर कट बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जबकि जो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो इस टेक्निक का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का मेन एडवांटेज ही ये है कि ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कन्वर्ट कर देती है इनटू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विच यू हैव स्टडी इन योर बीएस कोर्स, जो आपने बीएससी 2 इयर्स प्लान किया है मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ की बुक में 9-10 चैप्टर में, वो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस थी जिसके आपने यूनिक सॉल्यूशंस निकाले। तो that's why this one technique beneficial. Actually this one convert difficult partial differential equations into ordinary differential equation. Similarly, treatment can be applied to the equation if you have two or more independent variables. I have already explained it. If you have an equation involving 3, 4, so on variables, then you can also use partial differential equation method of separation variable technique. In your course, we will solve a partial differential equation involving two variables, because three or more variables can be solved by separation of variable technique. यानी कि अगर आपके पास PD है उसमें 3, 4, 5 वेरिएबल हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल टेक्निक से, बट complicated solution. But in your course we will solve generally partial differential equation involving 2 or 3 or 1 variables. However, the equation of separability of a partial differential equation onto two or more differential equation is by no means a trivial one. In this case, you will obtain two ODEs
which may be trivial or non-trivial. First of all, you check out is it trivial or non-trivial, then you start, then you solve it further. This one is method is separation of variable technique is generally used large case of initial and boundary value problem. The main advantage of this solution is that this solution is known as Fourier method or method of the eigenfunction expansion. Now, separation of variable. Separation of the variable is the most common and elementary method solving initial boundary value problem. The class of the problems for which this method is applicable contain wide range of problems of mathematical physics, applied mathematics, and engineering sciences. The main advantage of this technique is that which reduces your partial differential equation into two ordinary differential equations, which is the most important point. But condition is that your boundary condition should be homogeneous, यानी कि जो आपकी boundary condition जो मैंने आपको previous lecture में पढ़ाया था starting में, Dirichlet, Neumann, mixed, the Cauchy boundary, these all boundary conditions should be homogeneous. If you have non-homogeneous boundary condition, then first of all you convert it into homogeneous, then you can apply this one technique. Here consider standard form of your second order linear PDE, which is shown here, where A star, B star, C star, E star, F star are functions of X and Y. You have already known that, which you have already studied in your previous work. This one equation here involving two unknown. Thus, we separate this equation in terms of two variables. Look like x of x and y of y. Look like this here. Transform the equation into canonical form here. Canonical form which you have already studied, जो कि आपको लास्ट लेक्चर्स में मैं क्लासेस ली हैं उसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ कि हाउ कैन वी कन्वर्ट अ पीडी इनटू कैनोनिकल फॉर्म. दिस वन इज योर general stand equation here. We convert it into canonical form, which is shown here, where if a is equals to minus c is hyperbolic, which a equal 0, c भी 0 होगा, तो ये this one आपकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी पैराबोलिक, और अगर a equal c होगा तो ये एलिप्टिक बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन दिस, जो कि और तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक अगर लगाना चाह रहे हैं तो हम इसको, क्योंकि दिस ये आपकी जो इक्वेशन है जो नज़र आ रही है आपको 7.2.3, इसमें दो ही वेरिएबल नज़र आ रहे हैं x y, which are your independent. Here u is dependent. That's why we separate it look like this. हम इसको इस तरह सेपरेट करेंगे. यहाँ x of x, y of y, क्योंकि सिर्फ दो ही वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट इस वजह से, और u आपका डिपेंडेंट है इसलिए यहाँ u x of. अगर इधर यहाँ पे v होता या w होता तो यहाँ मैं w लिख देती, और जो भी आपके वेरिएबल होते x y z उस हिसाब से x y z कर लेती, और अगर z भी होता तो x of x, y of y और c of c लिखती, एंड विच इज नॉट इक्वल 0. तो देन इसको सेपरेट करती. ठीक है, हाउ कैन यू सेपरेट, ये सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर देंगे कि जहाँ जहाँ u f ये x y आएगा ना वहाँ वहाँ ये वाला, जैसे कि u x x है इसका. ठीक है, u x x का मतलब है पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर. आप इसको दो दफा डेरिवेटिव लेंगे. फर्स्ट टाइम लेंगे पार्शियली तो x डैश x y ऑफ y वैसे, फिर दूसरी बार लोगे तो ये x डबल डैश x आ जाएगा और y ऑफ y वैसे ही आ जाएगा.
अब ये इक्वेशन आपकी इस तरह की बन जाएगी, ये देखिए, क्योंकि ये वाली 7.2.3 इस तरह की थी ना, u ऑफ x, ठीक है, तो x का डबल डेरिवेटिव आ गया और y ऑफ y वैसे ही आ गया, u y ऑफ y है तो इसमें y का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, 2 दफ़ा पार्शियली डिफरेंशिएट जब आप इस इक्वेशन को करेंगे तो पहली बार डेरिवेटिव पार्शियली लेंगे तो y डैश y, दूसरी बार लेंगे तो y डबल, तो इसमें ये आ जाएगा, ठीक है, इसमें x डैश x और साथ y ऑफ y, इसमें y डैश y और x ऑफ x साथ और u की जगह ये पूरे का पूरा लगा, और यही यहाँ किया गया है इस इक्वेशन, ये देखें, ठीक है। हाँ, ये क्लियर लिखा है कि ये जो इसके प्राइम्स हैं ये इंडिकेट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अप्रोप्रिएट, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अप्रोप्रिएट वेरिएबल, ठीक है। हेयर pxy अगर देन वी डिवाइड इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, p ऑफ x ऑफ y से अगर करते हैं तो, यानी p ऑफ x ऑफ y का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है x ऑफ x y ऑफ y, यानी इस इक्वेशन को भी x ऑफ x y ऑफ y से, इस इक्वेशन को भी कौन सा x ऑफ x y ऑफ y, ये वाला स्टूडेंट, ये वाला जो आपने खुद से ये लेट करेंगे ना, अज्यूम किया है या लेट किया है, सपोज किया है, ये वाला जो भी आप करेंगे उससे किया है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, डिवाइड करेंगे इस तरह से, देन ये देखिए डिवाइडिंग, सही। सबसे पहले आपने क्या किया है कि इस ये वाली इक्वेशन को, ये वाली को, ठीक है, p ऑफ एक्स वाई से डिवाइड कर दे, देन a डिवाइडेड बाय p ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा, a1 एक्स वाई, फिर c डिवाइडेड बाय p ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये b1 वाई, इसी तरह से दिस वन, सारी ईच वन टर्म को करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाए, ठीक है। ये भी आपने खुद से लेट किया क्योंकि ये जनरल है, अभी क्वेश्चंस आप करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाए। उसके बाद आप इसी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, x ऑफ y से, यानी x ऑफ x एंड y ऑफ y। अब y ऑफ y तो कट जाएगा, सिर्फ x डबल डैश x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इसी तरह जब आप सारा को डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक ये माइनस के साथ, वो अब यहाँ प्लस है, वो जब इक्वल के आप इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस के साथ ये बन, ये वाई डबल डैश ऑफ वाई ऑफ वाई, और ये वाली इस तरह से इक्वेशन, और इसको आप इक्वेट कर सकते हैं जीरो के, ठीक है। पहली ये इसको अलहदा जीरो के कर लिए और इस वाली इक्वेशन को ये दिस वन, ये, और इसी को आप देन डिफरेंशिएट कर सकते हैं दिस वन, ठीक है। कैसे, राइट हैंड साइड जो है, क्योंकि ये क्लियर ये ना डिपेंड ऑन एक्स है एंड दिस वन इक्वेशन डिपेंड ऑन वाई, तो पहले राइट साइड डिपेंड ऑन वाई है हियर, ठीक है, और लेफ्ट हैंड जो है वो डिपेंड ऑन एक्स, तो हम डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये इन टर्म्स ऑफ एक्स वाली लेंगे, उसको इक्वेट जीरो कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे ये, तो वो कांस्टेंट, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट आ जाएगा ये, और इसी तरह लैम्डा इज सेपरेशन कांस्टेंट है, सेम एज जिस तरह से आपने इन टर्म्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया है और उसको इक्वेट, इसी तरह इन टर्म्स ऑफ वाई का लेंगे, उसको इक्वेट जीरो करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को, दिस वन, तो आपकी ये वाई वाली, इसी वजह से एक्स के साथ पॉजिटिव लैम्डा, इसके साथ माइनस, और देन आप इसके सॉल्यूशन को इस तरह से रीराइट, इनके दोनों के सॉल्यूशन को इक्वेट जीरो करके ये रीराइट कर दो, एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन है एक्चुअल आपकी स्टार्टिंग वाली का इन टर्म्स ऑफ
एक्स ऑफ एक्स एंड वाई और ऑफ वाई, और ये आप कर देख सकते हैं ये दोनों आपकी ओडीज बन गई। पहले यहाँ तक जो थी ना, पहले ये देखिए ये आपकी पीडी वाली थी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, कैनोनिकल फॉर्म। फिर ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ना कन्वर्ट हो गई है इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जब आपने लगाया उसको सिंप्लीफाई किया ना, तो यहाँ पे ये आपकी दो ओडीज बन गई, जिनको हमने अलहदा, एक इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक इन टर्म्स ऑफ वाई, तो उनको हमने अलहदा अलहदा इस तरह सॉल्व किया ये। और ये आपका टू ओडीज का वो, अब ओडीज का सोल्यूशन आपने उसी तरह से निकालना है जिस तरह आपने निकालना सीखा। सेम टेक्निक हमने जनरल फॉर्म सेकंड ऑर्डर पीडी पे लगाई है, ये वाली सेकंड ऑर्डर, ये आपको याद है ना, सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी को सॉल्व किया था, जिसको हमने कन्वर्ट सॉल्व किए हैं, जनरल सोल्यूशन निकाले हैं बाय कैनोनिकल फॉर्म। तो यहाँ वही ए बी सी डी एफ आर कांस्टेंट है और नोट ऑल आर जीरो। इसको भी आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यहाँ भी, क्योंकि जनरल फॉर्म आपकी जो है वो भी इन टर्म्स ऑफ कितने वेरिएबल हैं इसमें, 3, एक्स वाई और एक ये डिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। तो इसीलिए सेपरेशन वेरिएबल यू एक्स वाई ये हमने खुद से अज्यूम कर लिया और ये सब्स्टिट्यूट कर लिया कहाँ पे, इस इक्वेशन यू एक्स एक्स का मतलब है पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल एक्स स्केयर, यानी कि आपने इस इक्वेशन को, ये वाली को, दो दफा पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर x डबल डैश एक्स वाई ऑफ वाई आ जाएगा, यहाँ यू एक्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x डबल डैश एक्स वाई ऑफ वाई। इसी तरह यू एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा भला, आप इसको एक बार x की रिस्पेक्ट से और एक बार y की करेंगे तो ये x डैश एक्स वाई ऑफ डैश। इसी तरह ये y y का, इसी को आप दो दफा विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ऑफ एक्स वाई डबल डैश y। इसी तरह यू एक्स का x डैश एक्स वाई ऑफ वाई, यू वाई का x ऑफ एक्स वैसे ही y डैश y, और u की जगह पूरी ये लगा देंगे वैसे उठा के जो ज्यूम किया x ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई। ये देखिए यही ऐसे की। अब जो आपकी कैनोनिकल स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडी थी ना, उसके ये फॉर्म बन। अब इसको डिवाइड करना है ईच टर्म को, किससे, x ऑफ एक्स से y ऑफ y। तो ये y ऑफ y कट जाएगा, x डबल डैश x डिवाइडेड बाय x ऑफ x। इसी तरह यहाँ पे ये देखिए सेम है से ये इस तरह ये। अब ये आपकी ना एक फॉर्म सी बन रही है जैसे, तो ये विद रिस्पेक्ट टू वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x टू ऑब्टेन हियर, जैसे ये किया देखना x डबल डैश x, ये इसका डेरिवेटिव लिया, ये प्लस ये b ऑफ y, ठीक है, b ऑफ a किस किस के इक्वल है, ये आपका यहाँ से, ठीक है, और ये d ऑफ a, ये जो जो इन टर्म्स ऑफ x है ना उनको ये आपने ऐसे लेता, ये ऐसे सॉल्व कर लिया है दिस। एक फॉर्म ये एक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ y वाली है। इसका मतलब आपने, क्योंकि दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे ना, इस वजह से आपकी दो ही ओडीज आएंगी। अगर फॉर एग्जांपल 3 होते एक्स वाई जी, तो 3 आपके पास आती तो वो सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड बनते जाते हैं। तरीकाकार आपने यही अपनाना होता है। इसी तरह ये एक को उसी तरह डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर ये सेपरेशन वेरिएबल कांस्टेंट एक का माइनस बीटा आ गया यार। इसी तरह ये इसको आपने सॉल्व कर लिया, बीटा क्या है, कांस्टेंट है, यही आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, ये दिस जो y की निकाली डैश की दिस, ठीक है, ये सब सिंप्लीफाई कर लिए और फिर कंपेयर करेंगे तो बीटा आपके पास ये आ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल
टेक्निक का आगे कुछ नहीं किया। क्या किया आपने, सबसे पहले उसमें जो ज्यूम किया था उसको पार्शली डिफरेंशिएट करके इसमें लगा लिया, फिर ईच टर्म को एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई से तकसीम कर दी। ये देखें किसा कट गया, ये रह गया वाई डैश ओवर वाई, ठीक हो गया। वेयर ये याद रखें कि ये वाई डैश ओवर वाई जो है ना वो इसके बराबर है, डी ओवर बी, ये एक्स डबल डैश एक्स ओवर एक्स, ये बी ओवर, ठीक है जी, ये ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक्स डबल डैश एक्स ऑफ एक्स प्लस बी ओवर ए किधर लिख लिया ये वाला और ये इसके, ठीक है, प्लस डी ओवर ए, ये एक्स डैश ओवर एक्स, जैसे इस जहाँ जहाँ ये है उसका क्या आपने ले लिया डिफरेंशिएट, क्योंकि आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए जो एक्स वाली टर्म्स है ना, एक ये दो, इन्हीं को आप कर सकते, ये नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ वाई है और ये वैसे ही कांस्टेंट। समझ आ रही है आपको, ये इस तरह से आपने ली डेरिवेटिव के साथ डिफरेंशिएट कर ली, तो ये आपकी ये आ गई, ये फिर इसी को इधर रखा है प्लस यहाँ पे, ठीक है, डी, ये आ गया, तो ये आपकी टर्म वैसे ही रही, ठीक है। आपने ईच वन टर्म को डिवाइड कर लिया किसके साथ, बी ओवर ए है एक्स डैश एक्स ओवर एक्स दिस वन के साथ, इससे भी किया, इसको भी किया और इसको भी यहाँ से कर लिया, ठीक है। इसके साथ यहाँ ए आना, ये गलत है थोड़ा सा ना, गलती है, इधर डी ओवर ए कर लेना है आपने, गलती से वो उनसे बाय मिस्टेक कर लिखा, ठीक है। ईच ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ना, इसकी हर एक टर्म को, कितनी टर्म है इस इक्वेशन में, एक दो तीन, हर टर्म को आपने किसके साथ यहाँ डिवाइड करना है, एक्स डैश ओवर एक्स होल प्राइम, यानी होल डेरिवेटिव के साथ, इसको भी, इस टर्म को भी, इसको भी, तो ये इसमें से ये कट जाएंगे, इसके नीचे इसी तरह से आ जाएगी, साथ कांस्टेंट भी है बी, इस वाली वैल्यू से हर टर्म को डिवाइड कर, तो ये आपके पास, तो मस्ट दिस इक्वेशन इज एब्सोल्युटली, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये परफेक्ट फॉर्म ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल बाइनरी, आपके लिए कैसे, इस तरह से कि ये देखें बराबर के एक तरफ सारी y की टर्म्स है और बराबर के एक तरफ सारी x की टर्म्स है, ठीक है, इसलिए ये आपकी प्रॉपर फॉर्म बन सकती है। तो बोथ साइड मस्ट बी इक्वल टू अ कांस्टेंट बाय लैम्डा, हर एक को इक्वल लैम्डा कर लेते हैं, लैम्डा इज आपका लोअर है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक हो गई बात। तो क्लियर कट इसको आप करते हैं तो दिस वन इक्वल लैम्डा आ जाएगा, ये तो वाई डैश प्लस लैम्डा वाई इक्वल, वो माइनस वाला हो जाएगा, उधर आएगा तो प्लस का इस तरह से आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आ जाएगी आपके पास एक इक्वेशन और एक आपके पास ये, ठीक हो गया, ये ऐसे इस तरह से ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस वाली को हम ना, ये वाली आपकी जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे ना तो इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि ये जो डेरिवेटिव है ना ये इसमें से ख़त्म हो जाएगा, इक्वल किसके आ जाएगा, माइनस बीटा, ये बी माइनस बीटा इज सेपरेशन कांस्टेंट टू, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूट ये वाली इक्वेशन 7.2 दिस वन इनटू द ओरिजिनल, जो कौन सी आपकी ओरिजिनल थी ना उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है, ये ऐसे ये वाली
7.2.15, ये वाली जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल स्टूडेंट, ये वाली है आपकी ओरिजिनल, इसमें करना है आपने सब। ठीक है, ये इससे भी क्या था, इस वजह से यहाँ डिनोमिनेटर में ये आ रहा है। ये देखे एक्स डबल डैश एक्स, ये ओरिजिनल है ये, ठीक है। ये डी माइनस लैम्डा बी ओवर ए एक्स डैश, वो ये कैंसिल हो जाता है, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स। फिर आप इसको आराम से कंपेयर कर लें। ठीक है, ये आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सब के आप सॉल्व करेंगे उस पार्शियल को व्हेन यू हैव कंडीशंस। कौन कौन सी डिरिचलेट है, ऑलरेडी मैंने क्लास में पढ़ाया आपको कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल प्रिस्क्राइब्ड हो ना बाउंड्री, ठीक है, और जब उसका डेरिवेटिव हो तो वो न्यूमान कंडीशन है, प्रिस्क्राइब्ड हो ना बाउंड्री, मिक्स्ड क्या है व्हेन वो बाउंड्री ही हो, ये आपकी कंडीशंस हैं सारी। फिर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक अप्लाई करेंगे। ये